ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کورنگی کی عوام کی دل جیت لیے۔ فلاور شو کے انعقاد کو عوام میں بہترین پذیرائی مل رہی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کے زیر اہتمام جاری 10 روزہ جشن بہارہ کے تیسرے روز عیدگاہ گراؤنڈ کورنگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بھرپور شرکت۔ مہمانان خصوصی میں صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق شاہینہ شیر علی، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ جنید بلند، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ برائے کچی آبادی نجمی عالم اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن رؤف ناگوری شامل تھے۔ اس موقع پر پارٹی عہدیداران، بلدیاتی نمائندے، معزز شخصیات اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہینہ شیر علی نے جشن بہارہ کے انعقاد کو عوام کے لیے خوشی اور تفریح کا بہترین ذریعہ قرار دیا اور کہا، ایسے ثقافتی اور تفریحی پروگرام نہ صرف مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں بلکہ شہریوں کو صحت مند ماحول فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ جنید بلند نے PYSDP کے تحت ہونے والے کورسز پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کورنگی ٹاؤن میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے قابل تحسین ہیں اور آنے والے وقت میں کورنگی کی خواتین کے لیے میک اپ، سلائی اور مہندی کی بھی کلاسز شروع کریں گے۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم نے کہا کہ جشن بہارہ کا مقصد عوام کو صاف، محفوظ اور خوشگوار تفریح ماحول فراہم کرنا ہے، جہاں خاندانوں، بچوں اور نوجوانوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن رؤف ناگوری نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن انتظامیہ عوامی خدمت کے مشن پر کاربند ہے اور آئندہ بھی ایسے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا رہے گا۔ جشن بہارہ کے تیسرے روز فیملیز کی تفریح کے لیے اسٹیج پروگرامز کے ساتھ ساتھ میوزیکل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کے نامور گلوکاروں نے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو لطف اندوز کیا۔ شہریوں نے جشن کے بہترین انتظامات پر کورنگی ٹاؤن انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کی تقریبات مستقبل میں بھی منعقد ہوتی رہیں گی۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ٹاؤن میں سیوریج اور پانی کے نظام سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 اور چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی زیر صدارت سہراب گوٹ ٹاؤن آفس میں پانی اور سیوریج کے دیرینہ مسائل پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف انجینئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ شاہ رخ حسین، اسسٹنٹ انجینئر نہال AEE فرحان ایکسن، سہراب گوٹ ٹاؤن اشفاق پلیجو سمیت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا دیگر عملہ بھی شریک ہوا۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرقی کے سینئر نائب صدر سرور خان غازی، پاکستان پیپلز پارٹی سہراب گوٹ ٹاؤن کے تمام UC چیئرمینز، وائس چیئرمین، جنرل کونسلرز اور ٹاؤن کی ذیلی کمیٹیوں کے ممبران بھی شریک تھے۔ اجلاس کے دوران سہراب گوٹ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام بلدیاتی نمائندگان اور ٹاؤن کی ذیلی کمیٹیوں کے ممبران نے اپنے اپنے حلقوں میں پانی اور سیوریج سے متعلق درپیش ان گنت مسائل، عوامی مشکلات اور دشواریوں سے چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے عملے کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا اور مختلف شکایات پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ مکمل تعاون کے ساتھ سہراب گوٹ ٹاؤن کے عوام کو درپیش پانی اور سیوریج کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر جلد از جلد حل کرے گا۔ میٹنگ میں چیف انجینئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ شارق حسین اور دیگر افسران نے بھی یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار واٹر اینڈ سیوریج سے متعلق تمام عوامی مسائل کے حل کے لیے زمینی دورے کیے جائیں گے اور انہیں جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ مل کر تمام مسائل کے مستقل حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ پانی اور سیوریج کے مسائل کے حل کے بعد سہراب گوٹ ٹاؤن ایک ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے گا۔ نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، اس میں شاہراہوں سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची टाउन कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ और डायरेक्टर इंक्रोचमेंट ने कराची टाउन उबैदुल रहमान अपने दीगर अफसरान के हमरा पावर हाउस से 4K चुरंगी तक तजावुजात का खात्मा किया। अफसरान ने कहा कि किसी भी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कमिश्नर कराची की सख्त हिदायत है, जहाँ भी तजावुजात हैं उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। जितना भी सामान है उसको टाउन की गाड़ियों में लोड करके रवाना किया जा चुका है, जो कि अब जब्त होगा। देखें, ये जो आज की हमारी कार्रवाई है ये पावर हाउस से लेकर 4K तक हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें होता ये कि जो भी सामान हम जब्त करते हैं, हमारे पास एक यार्ड बना हुआ है, उस यार्ड में हम जितना भी ये सामान है सारा वहीं पे हम स्टोर कर देते हैं और तकरीबन 99.9% केसेस में हम इनको वापस नहीं करते हैं। कुछ एक केसेस में बहुत वो रेयरली कुछ होता है कि लोग हमें एफिडेविट दे जाते हैं कि हम दोबारा नहीं लगाते और हमें यकीन होता है कि ये इन्होंने नहीं लगाना, तब हम उनको वापस कर देते हैं। अलबत्ता इस तरह के बड़े ग्राउंड्स में या और होटल्स होते हैं तो हमें यकीन होता है दोबारा लगाएंगे तो हम उनको वापस नहीं करते हैं। आज हमारी बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। पावर हाउस से हम यहाँ तक आगे हैं, ये अपना करेला स्टॉप से आगे तक, और इसके बाद हम दोबारा जा रहे हैं अंदर ये पीले स्कूल वाली पट्टी पे। इसमें आपने देखा होगा कि हमने बड़े बड़े केबिन्स, फूड के जो है वो अपना स्टॉल्स, और ये काफ़ी बड़ा एक रेस्टोरेंट है, इसको भी आज क्लियर किया गया है और इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा सामान वापस नहीं दिया जाएगा। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हमें उनकी शानदार जंगी सलाहियतों पर नाज है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हमें उनकी शानदार जंगी सलाहियतों पर नाज है। नौजवान पाक फौज में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दें। ये बात टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया ने म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान के हमरा कराची बिलखसूस औरंगी टाउन के फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए टाउन चेयरमैन औरंगी ऑफिस में पाक आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर कैंप का इनेकाद करने पर पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जकी, मेजर जिशान और पाक आर्मी के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने लेफ्टिनेंट कर्नल जकी और मेजर जिशान को बताया कि औरंगी टाउन एक पसमानदा आबादी पर मुश्तमिल है। औरंगी टाउन की आबादी 30 से 35 लाख है। यहाँ की आवाम का ताल्लुक गरीब तबके से है। आज के पाक फौज में भर्ती कैंप से कराची बिलखसूस औरंगी टाउन की आवाम को फायदा होगा। यहाँ जो नौजवान फौज में भर्ती के लिए आए हैं उनके वालिदैन मुतमईन होंगे कि उनके बच्चे किसी गलत कामों में तो नहीं हैं। ये बच्चे पाकिस्तान का बहुत अहम असासा हैं। उनका बच्चा पाक फौज का सिपाही बन जाएगा। मैं ये चाहूंगा कि ये बच्चे पाकिस्तान आर्मी में शामिल होकर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पर नजर रखेंगे और पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करेंगे। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करवाएं ताकि उनके बच्चे माशरती बुराइयां मसलन गुटखा, मावा, मंशियात, जुआ, सट्टा और दीगर जराइम से महफूज रह सकें और उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने नौजवानों की तरफ से पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल जकी और मेजर जिशान का शुक्रिया अदा किया कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। लेफ्टिनेंट कर्नल जकी ने कैंप में मौजूद नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज में भर्ती के लिए हजारों की तादाद में नौजवानों को देख कर खुशगवार हैरत हुई जो फौज में भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं। नौजवानों का ये हौसला देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये आपका कौमी फरीजा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जकी ने कहा कि मैं टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया और इमरान हफीज चेयरमैन आल ताजिर बनारसी बिजनेस कम्युनिटी एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नौजवानों के लिए पाक फौज में भर्ती के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। मेजर जिशान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी मुल्क का जांबाज सिपाही होता है। ये अपनी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त पहरा देते हैं। आप लोगों ने भी पाक फौज में शमूलियत के बाद पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना है। तकरीब में यूसी नंबर 1 के चेयरमैन अली जहांगीर, यूसी 3 के चेयरमैन मकबूल खान, यूसी 8 के चेयरमैन दिलशाद खान, वाइस चेयरमैन आगा मोहम्मद हनीफ खान, लेबर काउंसलर मुराद बख्श, खवातीन की मखसूस निश्त की इकरा सिद्दीकी, अकलियती काउंसलर सनी लेओन, बल्दियाती अफसरान, असातिज़ा अकराम और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का।
वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नजरतुल्ला का कहना है कि जहां पार्क्स वीरान होते हैं वहां अस्पताल आबाद होते हैं। शहर कायद को पार्क्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सबको मिलकर शहर की खिदमत करनी होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहां पार्क आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्ला ने केडीए की जानिब से 5 पार्कों की तज़ीनो आराइश मुकम्मल होने के बाद उन्हें टाउन इंतजामिया के हवाले करने की तकरीब के मौके पर किया। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्ला ने कहा कि शहरियों को सेहतमंद और बेहतर तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए सरसब्ज पार्कों और तफरीही मुकामात की दस्तयाबी इंतहाई जरूरी है। पार्क न सिर्फ आवाम को वर्जिश और सेहतमंद सरगर्मियों का मौका फराहम करते हैं बल्कि जहनी सुकून और माशरती हम आहंगी के फरोग में भी अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि केडीए की जानिब से पार्कों की तज़ीनो आराइश एक खुश आइन इकदाम है और टाउन इंतजामिया इन पार्कों की देखभाल, सफाई और हिफाजत को यकीनी बनाएगी ताकि आवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर सहूलियात मुयसर आ सकें। उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह रवा माह गुलबर्ग टाउन की जानिब से लाल किला पार्क में सालाना फूलों की नुमाइश का इनेकाद भी किया जा रहा है, जहां हजारों की तादाद में फूल और पौधे मौजूद होंगे, जो कि आवाम के लिए खुश आइन बात है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने आवाम से भी अपील की कि वो पार्कों को अपनी मुश्तरका अमानत समझते हुए उनकी हिफाजत करें। इस मौके पर उनके हमरा यूसी 8 के चेयरमैन फारूक नेमतुल्ला, यूसी 4 के वाइस चेयरमैन इरफान शाह, डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर मुतल्लिका अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन ने केडीए के इक़दाम को सराहा और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए बाहिमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली का अफसरान से इजलास, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ मुख्तलिफ बल्दियाती उमूर की बेहतरी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो समेत मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने अफसरान को हिदायत की कि महकमा जात कारकर्दगी को बेहतर बनाकर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम बरोए कार लाएं। मेयारी तरक्याती काम अव्वलीन तरजीह है, लिहाजा कोशिश की जाए कि जो तरक्याती काम सर अंजाम दिए जाएं वो ऐसे हों जिससे आवाम तवील अरसे तक मुस्तफीद हो सकें। अफसरान जारी तरक्याती कामों का अज खुद मुआयना करके बर वक्त तरक्याती मंसूबों की तकमील के हवाले से अपना किरदार अदा करें। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो ने इस मौके पर कहा कि चेयरमैन राशिद खास खेली की सरबराही में महकमा जात मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। कोशिश ये है कि सफूरा टाउन की बेहतरी के लिए जो भी काम सर अंजाम दिए जा सकते हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर सर अंजाम दिया जाए। महकमा इंसदाद तजावुजात गुलशन इकबाल डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, मुतादिद ठेले पथारे जब्त कर लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुजात बल्दिया उस्मा कराची गुलशन इकबाल डिवीजन की जानिब से अब्बुल हसन असफहानी रोड, मस्कन चुरंगी, हिजरी रोड के अतराफ में कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक की राह में हायल होने वाले ठेले पथारे, काउंटर, फुटपाथ पर होटलों की जानिब से लगाई गई टेबल, कुर्सियां और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मौके पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने तजावुजात कायम करने वालों को सख्त तनबीह करते हुए कहा, आइंदा तजावुजात कायम करने की सूरत में उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत है कि तजावुजात का सफाया किया जाए। तजावुजात के सबब लोग बहुत परेशान होते हैं और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर गुलशन इकबाल अली अलमदार ने की। साबिक सूबाई वजीर बराए महकमा जंगलात हुकूमत सिंध, रुकन सूबाई असम्बली PS 51 और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस मोहम्मद तैमूर तालपुर की टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन बल्दिया आमद टाउन चेयरमैन से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर जंगलात मोहम्मद तैमूर तालपुर की टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन बल्दिया के मरकजी दफ्तर आमद पर चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन बल्दिया अब्दुल करीम अस्कानी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी हनीफ खान सवाती, वाइस चेयरमैन रहीम शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक नजीर भुट्टो, TMC अफसरान, पीपल्स यूथ ऑफिस कराची डिवीजन के ऑफिस सेक्रेटरी हसाम शहदाद और अरकान कौंसिल मेंबरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर तैमूर तालपुर ने सदर PS 111 और चेयरमैन टाउन
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया अब्दुल करीम अस्कानी से मुलाकात की, जिसमें बल्दिया टाउन में अवामी फलाह बहबूद, बल्दियाती मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी ने मोहम्मद तैमूर तालपुर को बल्दिया टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों और मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों से तफसीली तौर पर आगाह किया और बताया कि इलाके में अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे तेजी से जारी हैं। तैमूर तालपुर ने टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी की अवामी खिदमात, मुयस्सर क़यादत और बल्दिया टाउन में जारी और मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों को सराहते हुए इनकी कारकर्दगी पर खराजे तहसीन पेश किया और इसे बल्दियाती सतह पर एक मुस्बत और काबिल तकलीद मिसाल करार दिया। तैमूर तालपुर की जानिब से बल्दिया टाउन के अवामी मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। यहाँ पे जो मकसद है आने का, उसमें दो रिश्ते हैं मेरे और अस्कानी साहब के। एक तो हम भाई हैं क्योंकि हम दोनों पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वर्कर हैं, और दूसरा हमारा एक दिल का रिश्ता है, एक दोस्ती है। तो मैं भी चाह रहा था कि आऊँ देखूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सुन रहे थे कि काम अच्छे चल रहे हैं, सुन रहे थे कि रोड रस्तों की डेवलपमेंट भी हो रही है। तो एक मौका मिला, अस्कानी साहब ने दावत दी तो हम आए, कुछ देखा है, कुछ अभी और घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे, और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा काम अस्कानी साहब कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी और ज़रूरत होगी इनके इलाके को, तो वो भी उनसे पूछेंगे। कोई इनकी फरमाइशात होंगी, कोई इनकी ज़रूरत होंगी तो मुराद अली शाह साहब तक भी लेके जाएंगे और चाहेंगे कि जो बेहतरी है उसको और बेहतर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। आपने दो सवाल बेसिकली किए। पहला तो आपने कहा कि एमक्यूएम का, एमक्यूएम आपसे, मुझसे, हमारे बड़ों से किसी छुपी ढकी नहीं है। दहशतगर्दी की सियासत इन्होंने की, लूट मार की सियासत इन्होंने की, बोरी बंद लाशों की सियासत इन्होंने की, भत्ता ना मिलने पर 100 लोगों का कत्ल इन लोगों ने किया। तो आपके ख्याल से कौन इनको वोट देगा? कोई माँ अपने बच्चों को इनको वोट देने देगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अभी ये जिस तरह से आए वो भी आपके मेरे सामने है, पर उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के कारकुन, उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं, लोग उनसे खुश हैं, आवाम उनके साथ है, और अगर इस बार भी कुछ फेयरनेस होती तो पीपल्स पार्टी और ज़्यादा सीटें उठाती, ख़ुसूसन कराची से। और मैं फ्यूचर में भी देखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक एमक्यूएम है जो अब रही नहीं है और ज़बरदस्ती फिर से होनी नहीं है। दूसरा पीटीआई है जो कि दिन ब दिन ताबूत में बंद होती जा रही है। इनका कल का जो प्रोग्राम था, जो शटर बंद होना था 8 तारीख का, आपने देखा ना कोई बंदा निकला, ना बंदे की ज़ात निकली, ना झंडा लड़खाया कहीं पे इनका। तो बाकी बची पीपल्स पार्टी। तो इंशाल्लाह ताला मैं और बेहतर फ्यूचर देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले इलेक्शन में। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम अस्कानी की जानिब से साबिक सूबाई वजीर बराए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध, रुकन सूबाई असम्बली PS51 और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस जनाब मोहम्मद तैमूर तालपुर को सिंध की रिवायती सिंधी टोपी, अजरक और एजाजी शील्ड पेश की गई और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब तैमूर तालपुर साहब का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी दावत पे यहाँ पर आए और पूरे बल्दिया का इन्होंने यहाँ पर हमारे ऑफिस का विज़िट किया। और इंशाअल्लाह ताला जो काम के हवाले से है, पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे तरक्याती काम हमारे पास हमने करवाए हैं पीपल्स पार्टी की तवस्सुत से, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलकर हम बहुत सारे काम करवाएंगे। जिस तरह तालपुर साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी जिस लगन और मेहनत के साथ काम कर रही है, इंशाअल्लाह ताला दूसरी पार्टियों को वो स्पेस नहीं मिलेगी। आइंदा आने वाला जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है वो भी पीपल्स पार्टी विन करेगी, और इंशाअल्लाह ताला जो मेयर कराची मुंतखब होगा आने वाला, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब होगी। क्योंकि यहाँ पर दूसरी जो पार्टियाँ हैं उन्होंने सिवाय दावों और नारों के अलावा कुछ नहीं दिया कराची को। जिस तरह एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, मेरे भाइयों वफाक के हवाले तो मुशर्रफ दौर में भी था, ज़िया के दौर में भी था। इन तमाम दौरों में जितनी भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जितनी भी अमवात हुई हैं, जितनी भी टारगेट किलिंग हुई है, शायद किसी दौर में हुई हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो तमाम जितने भी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर चलने का हुनर रखती है और जानती है कि किस तरह इनके साथ बिहेव करना है। और ये इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इस कराची के अंदर दोबारा अपना मेयर मुंतखब भी करेगी और इसी तरह कराची के लोग
لوگ جس محبت اور پیار کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی بھرپور ساتھ بھی دیں گے اور ان کے ساتھ بالکل ایک مل کر ایک نیا جو ٹینور ہوگا اس میں بھی اپنا بہتری طریقے سے پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیں گے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے بلدیہ کی عوام کے لیے مزید تحفظ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو